And thank you very much, Aisha, for a very long introduction. Yes, first, I would like to congratulate for organizing this first conference on eating disorders. It's quite interesting. We know about the huge treatment gap, but usually, and I would go through my slides and we'll maybe able to talk also towards the end. Is focused is maybe rightly so on common mental disorders, and somehow disorders like eating disorders are left under researched, and one of the aims, targets of the Sustainable Development Goals is ensuring that no one is left behind. So this is my disclosure of conflict of interest. I've been a trustee of different organizations. I do attend some events organized by pharmaceutical companies. I am with the Royal College of Psychiatrists, and I'm an NIHR senior investigator. I understand my time is till 10:30. Next slide, please. So in the UK, healthcare organizations are called trusts. So this is the trust I work with. And we've got about 12,000 staff, large budget, and we cover more than 11 million population. And look at where it says life rooms. Must have a look at it on the website. It's something which has been developed in collaboration with service users and carers. Or the other thing I want you to notice is the biggest IAPT service. So IAPT service is increasing access to psychological therapies. Ab isko kehte hain talking treatments. They have changed their name. Largest provider of the learning disability forensic service. So it's a very large trust. And the reason I'm showing it to you is that we have got eating disorder service as well. And it's important for collaborations and partnerships that we can work together and look at what can be the bilateral learning. Next slide, please. This is for our global group as well, for PIL as well. जो research strategy है वो है across the life course. Life course है and across all disorders. अच्छा, all disorders तो है, लेकिन focus काफी preventive mental health के ऊपर भी है. तो अगर आप right side of the slide देखें, so these are sustainable development goals जो कि United Nations के हैं, 17 goals. So उससे भी align करने की कोशिश की है, क्योंकि Pakistan and UK both are signatories to the Sustainable Development Goals. Next slide, please. अच्छा, mental health inequalities. एक तो mental health inequalities है between high income countries and low income countries. अच्छा, फिर within countries भी disparities हैं, inequalities हैं. और जैसे साउथ लंदन है, लिवरपूल नॉर्थ है, so north में needs are higher and resources and investment is less. और साउथ में needs are कम, लेकिन investment is more in a city like London. इसी तरह हम अपने मुल्क में भी देखें, पाकिस्तान में, so needs are higher in rural areas, low income population. लेकिन ज्यादातर चीजें हमारी हैं in urban areas, in urban centers. People have to travel long distances for it. और excuse me, जो मैं mention किया, sustainable development goal, because if we look at the factors leading to mental health difficulties, social determinants उसके लिए बहुत important हैं.
और अगर आप देखें स्लाइड पे तो डेप्रिवेशन, लो इनकम, अनएम्प्लॉयमेंट, लो एजुकेशन, पुअर फिजिकल हेल्थ, और पुअर मेंटल हेल्थ पॉलिसी. So अभी हमारे ग्रुप ने we have worked with the President of Pakistan and the provinces and we have made a draft of Pakistan National Mental Health Policy जो कि अभी नहीं है, हमारा डिवॉल्व है प्रोविंसेस में, तो उधर ज्यादा हो रहा है. तो अगर आप वो सारी चीजें देखें जो रॉयल कॉलेज ऑफ साइकियाट्रिस्ट कहता है तो वो हम सबको बहुत अप्लाई करती हैं. दूसरी एक और चीज है जो कि हम गरीब मुल्क होते हुए लो मिडिल इनकम कंट्री, हमारे यहाँ हेल्थ इकोनॉमिक्स नहीं पढ़ाई जाती. तो हमारे लिए डॉलर्स एंड सेंट्स आर फार मोर इम्पोर्टेंट कि हम सही डायरेक्शन में इन्वेस्ट करें. तो अगर आप देखें फर्स्ट लाइनर के ऊपर कि यूके में उनकी कॉस्ट जो है 105 बिलियन पाउंड्स है, विच इज क्वार्टर ऑफ अ पॉपुलेशन. हमारी पाकिस्तान की 4 टाइम्स दी पॉपुलेशन. पैसे हमारे पास है नहीं, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स है नहीं. कौन, हु इज गोइंग टू पे फॉर दैट, और हमारा क्या रोल होना चाहिए, दैट्स इंपॉर्टेंट. नेक्स्ट स्लाइड प्लीज. अच्छा, ये जो WHO है उन्होंने एस्टिमेट किया है कि भाई कितना बर्डन ऑफ डिजीज है. अच्छा, इसमें नोट करें कि आदमियों में भी कम प्रॉब्लम नहीं है. People talk about focus on depression, anxiety, और उसमें. So look at men also. And it's important when we are talking about the women who are around them. ठीक है, they would be men, and often हमारी society में men are the decision makers. So अगर वही depression और anxiety से गुजर रहे हैं बहुत ज्यादा, so you can imagine the impact on the family. राइट साइड पे देखें तो ये रिपोर्ट है लुक एट इट. सो जो ट्रांसफॉर्मेशन होनी है वो इट वुड बी इंपॉर्टेंट. हम नेक्स्ट स्लाइड पे चलें. अच्छा, ईटिंग डिसऑर्डर्स, इस पे बहुत बात होगी दोनों दिन. सो आई एम नॉट गोइंग टू स्पेंड मच टाइम ऑन इट, लेकिन दो कॉमन जो हैं, नेक्स्ट स्लाइड प्लीज. दो कॉमन डिसऑर्डर्स जो हैं वो एक एनोरेक्सिया नर्वोसा है और दूसरा बुलिमिया. इसमें आप अगेन 2 दिन तक काफी सुनेंगे कि एक जो है उसमें वो मेंटेन कर रहे होते हैं लो वेट और फैटिंग फूड अवॉइड कर रहे होते हैं. अच्छा, पर्जिंग जो है वो दोनों में, बुलिमिया में भी है और एनोरेक्सिया नर्वोसा में भी है. दैट इज एन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन टू आस्क कि जब यू आर एक्सप्लोरिंग एंड स्क्रीनिंग फॉर ईटिंग डिसऑर्डर्स. नेक्स्ट प्लीज. अच्छा, एक ये नहीं है कि जी उनको ईटिंग डिसऑर्डर्स है, उनकी कोमॉर्बिडिटी Professor Husain, are you with us? IT team, can we please check if he's with us or not? Okay, I think Professor Husain has some internet disconnectivity. Okay. Mrs. Ma, if you can ask him to join again. So it's a request from Professor Husain that I can continue with his slides. So I will be taking the opportunity to take you guys along with the slides. So जैसे प्रोफेसर हुसैन बता रहे थे कि ये अपने आप में तो डिजीज का एक बर्डन है, लेकिन इसके साथ ही ये इनके
कमॉर्बिडिटीज हैं जिनका बर्डन इसको इंक्रीज कर देता है। ग्लोबल बर्डन जो है हमारा पास डिजीज का हाई हो जाता है, और जो कि अल्टीमेटली पुअर क्वालिटी ऑफ लाइफ को भी एसोसिएट करता है। इसके अलावा अगर हम ये बात करें कि ईटिंग डिसऑर्डर जो है वो सीरियस मेंटल हेल्थ कंडीशन है, जो कि पर्सन को ना सिर्फ फिजिकली अफेक्ट करता है बल्कि साइकोलॉजिकली भी अफेक्ट करता है। और ग्लोबल बर्डन की जैसे भी हम बात कर रहे थे, ग्लोबल बर्डन ऑफ डिजीजेज, इंजरीज एंड रिस्क फैक्टर स्टडी जो है वो हाईलाइट करती है कि 41.9 मिलियन जो केसेस हैं वो अंडर रिपोर्टेड हैं ईटिंग डिसऑर्डर्स के। एंड individuals with eating disorders have significantly higher mortality rates as compared to any other disorders. और इसमें जो डायग्नोसिस होता है हॉस्पिटल सेटिंग्स के जो लोग आते हैं इस डिसऑर्डर्स के साथ, उनमें 5 to 7 times हायर मोर्टेलिटी रेट होता है एज कम्पेयर टू द जनरल पॉपुलेशन। देन द डिसेबिलिटी एडजस्टेड लाइफ ईयर्स, इसके हाई रेट्स हैं। 6.6 मिलियन पीपल जो हैं 2019 तक हमारे पास रिपोर्ट हुए हैं जो कि डिसेबिलिटी एडजस्टेड लाइफ ईयर्स का शिकार हुए हैं जस्ट बिकॉज ऑफ ईटिंग डिसऑर्डर्स। और ईटिंग डिसऑर्डर्स की जो ट्रीटमेंट है ऑफन कॉम्प्लिकेटेड होती है, और हमारे कल्चर में तो पर्टिकुलरली ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है जस्ट बिकॉज के हम लोग ओवर ईटिंग भी करवाते हैं बच्चों को, और किसी का हेल्दी होना अगर वो ओवर ईट कर रहा है या फिर कम खा रहा है उसको हम बहुत ज़्यादा नोटिस नहीं करते हैं कि डाइट मेंटेन हो रही है, या इस तरीके से हम लेकर चलते हैं। जैसे भी हम बात कर चुके हैं कि बिंज ईटिंग डिसऑर्डर्स की कमॉर्बिडिटीज हैं, तो ये कमॉर्बिडिटीज जो हैं इसकी साइकियाट्रिक कमॉर्बिडिटीज भी हैं, और सिविरिटी से ये हमारे साथ ओबेसिटी के साथ भी एसोसिएटेड है। और मेडिकल कंडीशन जैसे कि टाइप 2 डायबिटीज, मेटाबॉलिक सिंड्रोम, स्लीप डिसऑर्डर, एस्थमा, इवन मेंस्ट्रुअल साइकिल की डिस्टर्बेंसेस में कॉज करता है, एंड गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल इश्यूज भी ये कॉज करता है। ग्लोबल प्रेवलेंस अगर इसकी देखी जाए तो इन 2019 14 मिलियन पीपल experienced eating disorders and almost 3 million of this number were children and adolescents, जो कि हम यहाँ पर इस टाइम पे भी हमारे पास एक नंबर ऑफ पॉपुलेशन जो है वो adolescents ही है। Anorexia nervosa and bulimia nervosa combinedly 12th leading cause of disability adjusted life years है among 15 to 19 years of population, particularly female, and this is a very high number. If we talk about the prevalence of the UK, as the topic of Professor Sen was about the prevalence in UK and the treatment they are getting over there. So the prevalence in UK is about 1.25 and 3.4 million people in the UK, and around 10% of the people affected by an eating disorder usually suffer from anorexia nervosa, and 40% of people affected by an eating disorder called bulimia nervosa. So we can see the ratio of bulimia is higher than the anorexia nervosa. Eating disorders have the highest mortality rates among psychiatric disorders, and particularly in adolescents. If we talk about the UK ethnic minority, the Office for National Statistics reports in 2011, they provide estimate of ethnic minority population in England and Wales as being 14%. That is about the 7.5 million people. And this includes the following ethnicities: Asian, British, Indian, Pakistani, and Bangladeshis, Chinese, and other Asian region, that are 7.5%. Mixed multiple ethnic group is about 2.2%. That includes white and black Caribbean, white Asian, white and black African, and other mixed. Other minority ethnic groups, Arabs, and other ethnic group is 1.0%. It is expected that by 2051, ethnic minorities will contribute to 20% of the UK population. क्योंकि हमारे यहाँ से बहुत ज़्यादा जो माइग्रेशन है और बहुत ज़्यादा लोगों का रुझान जो है वो यूके और यूरोपियन कंट्रीज की तरफ है, तो बाय 2051 इट इज़ एस्टिमेटेड दैट कि 20% ऑफ यूके पॉपुलेशन जो है वो एथनिक माइनॉरिटीज पे कॉन्स्टिट्यूट करेगा। अब प्रेवलेंस इन एथनिक माइनॉरिटीज एंड ब्रिटिश साउथ एशियन, इनमें कितनी ईटिंग डिसऑर्डर्स की प्रेवलेंस है, तो कुछ स्टडीज हमें रिपोर्ट ये करती हैं कि इन एथनिक माइनॉरिटीज के साथ भी ये बहुत ज़्यादा प्रेवलेंट मौजूद है, इसकी प्रेवलेंस है ईटिंग डिसऑर्डर्स की।
इसके अलावा कुछ स्टडीज जो हैं ब्रिटिश एशियन पॉपुलेशंस का जो लेवल ऑफ रिस्क आर सिमिलर टू द लेवल इवन हायर देन दोज अमंग द वाइट ब्रिटिश पॉपुलेशन। वहां पर मौजूद ब्रिटिश एशियन पॉपुलेशन का कंपैरिजन किया गया है वाइट ब्रिटिश पॉपुलेशन के साथ, तो उनमें उतना ही इक्वली प्रेवलेंट है ईटिंग डिसऑर्डर्स जितना कि वाइट ब्रिटिश पॉपुलेशन में मौजूद है। इसके अलावा सर्वे किया गया था ऑफ 204 साउथ एशियन वेमेन एंड 355 कोकेशियन स्कूल गर्ल्स को लिया गया था, जिसमें प्रेवलेंस ऑफ बुलिमिया नर्वसा बताई गई थी, दैट वाज 3.4। अगर हम देखें रेशो तो 355 में से 3.4 इज अ बिग रेशो एंड 0.6% रिस्पेक्टिवली फॉर द बुलिमिया नर्वसा। मैं कर लूं आप बाकी स्लाइड्स पे आयशा? Yes, sir. We have Professor Husain back. So, please, sir, over to you. Okay. Thank you, बेटा, for taking over. अगर दोबारा चला जाऊं तो फिर आप कर लेना, ठीक है? अच्छा, प्रेवलेंस की लोग बात करते हैं और उन्होंने देखी है, लेकिन इसमें दो चीजें नोट करें और हमेशा लिटरेचर पे नोट करें। आप देखें डेट्स ऑफ द स्टडीज क्या हैं, 20 साल पुरानी स्टडीज हैं। मम्फर्ड जब आए थे पाकिस्तान भी, जब मैं ट्रेनिंग कर रहा था इंस्टीट्यूट ऑफ साइकाइट्री में इस्लामाबाद में, तो इनकी बड़ी अच्छी स्टडीज हैं चित्राल की, ससुराल की, गुजर खान में। एंड सो ही लुक्ड एट इट, तो ब्रैडफोर्ड में काम करते थे। उसके बाद से कोई इतनी अच्छी जो है स्टडीज नहीं आई हैं, और वी डू नॉट फाइंड एशियंस इनके अंदर जो सर्विसेज हैं। तो इट्स अ पॉइंट ऑफ कंसर्न। ये नहीं हो सकता कि हमें ईटिंग डिसऑर्डर्स नहीं है। नेक्स्ट स्लाइड पे चलें। तो अगेन दिस इज वन ऑफ द स्टडीज जिसमें वो बात कर रहे हैं। और अगेन आप देखें नीचे की साइड पे स्लाइड में कि कॉन्ट्रडिक्टरी सी एविडेंस है, कहीं प्रेवलेंस ज्यादा बताते हैं, कहीं प्रेवलेंस कम बताते हैं। और अगर आप देखें लेस्टर जो नाम है ना, one of the largest proportion of Asians are in Leicester. Next slide, please. तो जैसे मैंने कहा कि मिक्स फाइंडिंग्स हैं, और वो मिक्स फाइंडिंग्स भी they are quite old findings. So it is the message from this slide is कि mixed findings. And next, please. और इसमें क्या कह रहे हैं, एक्सप्लेनेशन क्या है? ये एशियंस आर नोन एज हार्ड टू एंगेज पॉपुलेशन, कि जी एंगेज नहीं करते हैं रिसर्च में। अच्छा, मेजर्स जो यूज होते हैं, तो हमारा बड़ा ट्रांसलेशन का ग्रुप है, और यहाँ पे प्रोफेसर जैनब भी आप लोगों के साथ बैठी हैं। तो इट टेक्स क्वाइट अ लॉट ऑफ टाइम अप्रोप्रिएट ट्रांसलेशंस करने के लिए। तो कुछ दिन पहले तक मैं रोज मॉर्निंग में आधे घंटे टीम के साथ ट्रांसलेशंस करता था। आधे घंटे में मुझसे 1 से 2 सेंटेंसेस से हम आगे नहीं बढ़ पाते थे। सो लुक एट इट कि इसमें कितने टाइम की जरूरत है। दूसरे, ये गूगल ट्रांसलेशंस और उर्दू बाजार से ट्रांसलेशन वुड नॉट सर्व द पर्पस। सो दैट इज वन ऑफ द रीजंस। लेकिन हार्ड टू एंगेज कहते तो हैं, लेकिन जो हम कम्युनिटी के साथ काम कर रहे होते हैं, तो वो कहते हैं कि हम वी आर नॉट हार्ड टू एंगेज, हमें कल्चरली अप्रोप्रिएटली लोग अप्रोच नहीं करते, वी आर इजी टू इग्नोर, दैट इज व्हाट दे से। नेक्स्ट, ये आगे चलें प्लीज। वही जो मैंने ये वन ऑफ द मोस्ट कॉमन मेजर्स इज ईटिंग डिसऑर्डर एग्जामिनेशन क्वेश्चनर। तो वो अगेन मोस्ट ऑफ द एविडेंस इज फ्रॉम द मेजॉरिटी वाइट फीमेल पॉपुलेशन। ट्रांसलेट हुआ है इटालियन में भी, स्पेनिश में भी, अरेबिक में भी, बट द क्वालिटी ऑफ ट्रांसलेशन मैंने देखा नहीं है। प्रॉब्ली आयशा के पास हो कि उर्दू में है कि नहीं है, but people are concerned about the quality of translations. So next, we have please. Translated it. ठीक बेटा, ठीक। Next, please. अच्छा, अब वो बात पिछली स्लाइड से चल रही है कि अंडर रिप्रेजेंटेड हैं, जब अप्रोच ही नहीं होगी तो उनसे किस तरह उनको ट्रीटमेंट जो है ऑफर किया जाएगा। और जो अगेन ओल्डर स्टडीज हैं,
लेकिन लोग कह रहे हैं कि जी रेट्स जो हैं बढ़ते जा रहे हैं। तो ये दिनेश बुगरा भी काफी दफा पाकिस्तान आए हैं, और ये कैम बुही भी अभी वर्ल्ड साइकियाट्रिक उसमें आए थे कॉन्फ्रेंस में। तो ये लोग लीडिंग रिसर्चर्स हैं, कल्चर साइकियाट्री के लीडिंग रिसर्चर्स हैं यूके के। लेकिन उनकी भी आप देखें, द स्टडीज आर ओल्ड, 20 साल हो गए इसको पब्लिश हुए हुए, जो बुगरा एंड बुही की है। नेक्स्ट प्लीज। कुछ काम हुआ है। मैंने आपसे नॉर्थ एंड साउथ की बात की थी। अगेन ये लंदन की स्टडी है, अगेन ये मम्फर्ड की पुरानी स्टडीज है, और बुई एंड बुकरा की भी। लेकिन ये कहते हैं चाहे वो सर्विस में प्रेजेंटेशन हो, चाहे अदरवाइज उनके असेसमेंट्स हो, दे डू फाइंड डिफरेंसेस। कई जगह जो है एशियंस की प्रेजेंस ज्यादा है, कई जगह पे जो है वो कम है। आगे चलें प्लीज। अच्छा, बैरियर्स क्या हैं? बैरियर्स क्या हैं कि दे एक्सपेक्ट सर्विसेज बनी हुई हैं फॉर द मेजॉरिटी वाइट पॉपुलेशन। अच्छा, इट इज नॉट दिस कि मेजॉरिटी वाइट पॉपुलेशन के लिए बनी हुई है। मेरे जैसे डॉक्टर वहां पे बहुत हैं, जीपीज जो प्राइमरी केयर फिजिशियंस हैं माशाल्लाह बहुत हैं साउथ एशिया के। लेकिन हम भी जो सोचते हैं वो फ्रॉम अ वेस्टर्न पर्सपेक्टिव सोचते हैं। तो हमने एक मैनचेस्टर में स्टडी की थी, 1000 पाकिस्तानी की, 1000 वाइट्स की। वो डिप्रेशन की स्टडी थी। जब वो प्रेजेंट करते थे तो डायग्नोस और उसमें बहुत मेजर डिफरेंस था। तो कुछ तो सिम्टम्स में डिफरेंस था कि जी उनके फिजिकल सिम्टम्स ज्यादा थे एशियंस के, और वाइट्स के साइकोलॉजिकल सिम्टम्स ज्यादा थे। लेकिन परेशानी की बात यह थी कि जब जीपी ब्राउन था, पेशेंट उसी तरह अपने सिम्टम्स एक्सप्रेस कर रहा था एज वाइट्स, लेकिन फिर भी जो है ब्राउन जीपीज वर नॉट मेकिंग अ डायग्नोसिस। सो देयर नंबर ऑफ इश्यूज अराउंड इट। तो उसको हमें देखना बहुत जरूरी है। और जैसे मैं आमतौर से बात करता हूं, वी नीड टू लुक एट के उर्दू में हम मरीज तो उर्दू में देखते हैं, लेकिन ज्यादा पढ़ाई हमारी इंग्लिश में होती है हमारी। बट वी नीड टू लुक एट कि हमें अपनी उर्दू लैंग्वेज में, सिंधी लैंग्वेज में, जो लोकल लैंग्वेजेस हैं उसमें कैसे कमांड बेहतर हो, टू बी एबल टू ऑफर अप्रोप्रिएट ट्रीटमेंट। मुझे लगता है ऑफ्टन हम अपने मुल्क में भी वो कर रहे हैं जो एथनिक माइनॉरिटीज के साथ यूके में हो रहा है। So we come from a Western hat and use those same treatments और उनको अप्लाई करने की कोशिश करते हैं। कुछ लोग हैं बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। नेक्स्ट प्लीज। अच्छा, ये रेफरल्स का मैंने आपको जीपीज की एग्जांपल दी, वो रेफर ही नहीं करेंगे अगर प्राइमरी केयर से ईटिंग डिसऑर्डर सर्विस में। तो किस तरह से उसको एड्रेस किया जाएगा, किस तरह रिसर्च होगी, किस तरह से और ज्यादा काम हो सकेगा। नेक्स्ट प्लीज। ये लोग कहते हैं कि जी अवेयरनेस कम है। अब अवेयरनेस कम है तो उनको अवेयर कैसे किया जाए ईटिंग डिसऑर्डर की? तो वन ऑफ द थिंग्स जिसमें हम काम करते हैं, हम कम्युनिटी इंगेजमेंट बहुत इवेंट्स कराते हैं। अच्छा, फेथ बेस्ड जो जगह हैं वहां पे इंगेजमेंट बहुत ज्यादा है। सो वी वर्क विद द मॉस्क, विद द टेम्पल्स, विद द चर्च। उनमें ज्यादा करते हैं कि टू लुक एट के अवेयरनेस बढ़ाने के लिए। एंड स्मॉल थिंग्स लाइक कि पिक्चर्स जो हैं वो फिर एशियन लोगों की पिक्चर्स होती हैं, जो कोट्स होती हैं वो एशियंस की होती हैं, जो नाम होते हैं वो एशियंस के होते हैं, सो दैट दे आर एबल टू रिलेट टू दोस। नेक्स्ट प्लीज। रिस्क फैक्टर्स जो हैं, अगेन उसकी आई डोंट थिंक आई वुड हैव द टाइम, होपफुली इन द कमिंग 2 days कल्चरल फैक्टर्स को देखना इज इम्पोर्टेंट। Or it is not only about the language. Language is a very small part of it, of culture. Again, some part religion का है, लेकिन वो भी सब कुछ नहीं है. So we need to look at what are our value systems और किस किस्म का culture है, उसके adaptation का काम. Next please. वही हम माशाल्लाह खूब मिलते हैं, जुलते हैं और खाना पीना. I've been in Karachi for the last 10 days. मेरे ख्याल से मेरा भी कोई 10 pounds वजन बढ़ गया होगा. लोगों ने
लंच भी ट्वाइस ट्वाइस कर रहा हूँ और डिनर भी ट्वाइस ट्वाइस कर रहा हूँ। तो माशाल्लाह मोहब्बत लोग बहुत करते हैं खाने खिला के। नेक्स्ट आगे चलें। फैमिली फ्रेंड्स हमारा कलेक्टिव कल्चर है, और उसमें हमारे फेयरनेस, गोरे रंग की क्रीमें बहुत मिल रही होती हैं। एक तो ये है, और दूसरा ये कि जी किस तरह फिजिकल लुक किस किस्म की है, दैट इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट इन द कल्चर। तो उसके प्रेशर्स होते हैं, दे आर नॉट वेरी डिफरेंट फ्रॉम द वेस्टर्न प्रेशर्स, बट लुकिंग एट के किस तरह से हमारा कलेक्टिव कल्चर उसको एड्रेस कर रहा होता है, अप्रोच कर रहा होता है। मेरे 2 मिनट रह गए, हम आगे चलें प्लीज। ट्रीटमेंट की CBT है, मॉडले मेथड, मैं आगे थोड़ा और बताऊंगा उसका। आगे चलें प्लीज। ये है जो आयशा बाकी बात करेंगी, गेटिंग बेटर बाइट बाय बाइट। ये उल्रिच शिमिट हमें बहुत सपोर्ट करती हैं। शी इज अ ग्रेट फ्रेंड ऑफ पाकिस्तान। सारी हमारी सुसाइड प्रिवेंशन स्टडीज इनके साथ हुई हैं। नेक्स्ट प्लीज। ये दूसरा है एनोरेक्सिया नर्वोजा का, वो भी इन्हीं का है। हुआ इस पे भी आयशा काम कर रही हैं, एंड वी आर लुकिंग एट कि इसको कैसे करें। अच्छा, ये इंपॉर्टेंट स्लाइड है। द रीजन मैं एशियंस की बात कर रहा हूँ, एंड द रीजन हम पाकिस्तान में और इंडिया में और इन जगहों में काम कर रहे हैं, इट्स अबाउट द बायलैटरल लर्निंग। जो हम सीख रहे होते हैं यूके से, वो हम पाकिस्तान ले आते हैं, पाकिस्तान से जो सीख रहे हैं बांग्लादेश ले जाते हैं। दैट इज हाउ 360 डिग्रीज हम कर रहे हैं, एंड वी वुड लाइक टू कि सब लोग ज्यादा से ज्यादा हमारे साथ कोलैबोरेट करें। नेक्स्ट प्लीज। ये अगर मौका मिले तो इसका ये रिव्यू प्लीज पढ़ लीजिएगा, कल्चरली अडॉप्टेड इंटरवेंशंस के बारे में। इसको शनाया लीड कर रही हैं। तो ये स्लाइड में मैं कहना चाहता हूं कि पहले वी नीड टू अंडरस्टैंड द सोशल ओरिजिन्स ऑफ ईटिंग डिसऑर्डर्स, उसी के बाद जो है अप्रोप्रिएट ट्रीटमेंट हो सकेगा। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। नेक्स्ट स्लाइड। ये हमारा मुख्तलिफ काम है कल्चर के साथ, जो बहुत मैं आपसे बात कर रहा था ना बायलैटरल लर्निंग की, ये दोनों जगह काम हो रहे हैं। यूके में भी हो रहा है, पाकिस्तान में भी हो रहा है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। ये मेरी फाइनल स्लाइड है, और आई एम सॉरी मुझे 1 या 2 मिनट लग जाएंगे, लेकिन इट्स ए ह्यूजली इंपॉर्टेंट स्लाइड। ऊपर जो है जो लिखा हुआ स्टिग्मा टुवर्ड मेंटल एंड फिजिकल इलनेस, इसमें अपने हेल्थ केयर प्रोफेशनल में भी देखा था स्टिग्मा, एंड इट इज नो लेस देन द वाइडर जनरल पॉपुलेशन। सो इट्स इंपॉर्टेंट। दूसरा मैसेज इसमें ये है कि इट्स इंपॉर्टेंट टू वर्क विद मीडिया, चाहे जंग हो, चाहे BBC हो, चाहे सारा, वी नीड टू लुक एट दैट कि वो रिपोर्ट भी कैसे कर रही है, अवेयरनेस कैसे बढ़ा रही है। एक और चीज है, आई थिंक डॉक्टर मीना इज कमिंग टुमारो, so she'll talk about maybe films, जो दिया है, भाई है, तो इन फिल्मों की she'll talk about कि इसको कैसे अवेयरनेस रेजिंग के लिए यूज किया जा रहा है। एंड ये इट्स अ स्मॉल पार्ट ऑफ द टीम। इसमें आप लोगों को आयशा भी नजर आ रही होंगी, और so thanks to them, thanks to the funders, thank you all for giving your attention, and again congratulations of organizing this first conference and setting up inshallah a center of research excellence. So wish you all the very best. Thank you very much.